Welcome to our channel UPSC with IITians. Through this channel, we will help you to navigate through the complex ecosystem of UPSC, the complex web of content that is there within the UPSC, the complexity of the exam, and all other aspect of the exam. We are here to help you evolve through the journey of UPSC preparation. Really our motto is to really to study less and learn more. So as of now, what is going on, it's everybody keep talking about the number of hours that you study and increasing the number of hours. What I believe is all of us have limited number of hours, that is 24 hours a day, and we cannot arguably extend the number of hours that we have. So I think individual's capacity is limited, so one can study for 7 hours and get exhausted, one can study for 10 hours and we are here to help you evolve through the journey of UPSC preparation. Really our motto is to really to study less and learn more. So as of now, what is going on, it's everybody keep talking about the number of hours that you study and increasing the number of hours. What I believe is all of us have limited number of hours, that is 24 hours a day, and we cannot arguably extend the number of hours that we have. So I think individual's capacity is limited, so one can study for 7 hours and get exhausted, one can study for 10 hours and get exhausted. So the numbers are really individual, and I certainly believe we cannot copy paste someone else advice or someone else strategy on someone else the number of hours that he or she is studying. So blindly copy नहीं कर सकते, but one thing that we certainly can change is the way we study it. तो जो हमारा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो completely हमारा फोकस रहेगा, that is to be more productive. तो हम बेसिकली 1 घंटे में हम ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं अगर 7 घंटे ही पढ़ पाता हूँ तो आई थिंक मैं 10 घंटे नहीं पढ़ा सकता उसको. ईयर्स लग जाएंगे उतना प्रोडक्टिविटी, उतना नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने के लिए, बट व्हाट कैन आई चेंज रेडिकली, इट्स द वे आई स्टडीड. द productivity aspect of preparation can significantly be changed. So we are here to help you how you can study smarter, how can you be sharper, and more importantly, how can you be successful in the way you are studying. As of now, you may feel stuck in the web of UPSC. So like end result आता नहीं है, बार बार prelims mains, और बहुत लोगों का तो prelims ही नहीं हो पाता है. So we are here to scenario with all of us कि हम बहुत बार पढ़ाई करते हैं, हर बार इतना सारा पढ़ाई करते हैं, but still unfortunately couldn't get through the examination. So what we need to change this into is this. So मतलब ऐसा कुछ करें कि जिससे we can, so all of us feel this feeling of stuckness in the UPSC. final result नहीं आता है. So अब पढ़ते रहते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, एंड व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इज UPSC बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, एंड स्पेशली विथ इंसेप्शन ऑफ AI और बाकी जो टेक्नोलॉजी कितना एक्सपोनेंशियली राइज किया है. इफ़ वी आर स्टडिंग द सेम वे एज वी यूज्ड टू डू अर्लियर, मतलब 2 साल पहले अगर जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ रहे हैं अपन, तो सीरियसली वी आर लिविंग इन द पास्ट. सो वी आर हेयर टू हेल्प यू टू बी स्मार्टर. अभी न्यू इंटेलिजेंट एज चल रहा है, इस इंटेलिजेंट एज के साथ अपने को कैसे इम्प्रोवाइज करना है, कैसे अपने बाय चेंजिंग द वे वी स्टडी, दैट इज़ व्हाट वी आर हेयर फॉर. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल हेल्प यू, रेदर वी विल इनेबल यू टू बेसिकली स्टडी स्मार्टर. और इतना सारा बुक्स आप कितना कम टाइम में बहुत ही प्रोडक्टिविटी के साथ और कितने अच्छे से रिटेंशन कर पाओगे. सो दिस इज एक्चुअली ओवर विजन. So through this diagram you could understand कि roughly basically एक कोई भी UPSC एस्पिरेंट का जर्नी ऐसा रहता है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है एंड इस साइड ऊपर की ओर मूव ऑन कर रहा है. सो बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक. यहाँ पे आर्ग्यूबली 1 से 2 साल लग जाता है एस्पिरेंट को, डिपेंडिंग अपॉन द बैकग्राउंड दैट दे हैव. तो यहाँ पे वो बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज करता है. इन द बेसिकली फाउंडेशन का प्रिपरेशन होता है,
तो यहाँ पे अपन NCERTs वगैरह पढ़ते हैं, बाकी और जो बेसिक बुक्स होते हैं वो सारा पढ़ते हैं, एंड बेसिकली वी बिल्ड फाउंडेशन अराउंड ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना। इसके बाद आता है एडवांस स्टडी, देन वी मूव ऑन फर्दर टू सॉर्ट ऑफ डीप डाइव इनटू द सब्जेक्ट्स। तो अपन थोड़ा एडवांस्ड बुक्स पढ़ने लगते हैं, डिफरेंट बुक्स की साइड जाते हैं, या फिर गूगल का हेल्प लेते हैं, ChatGPT या बाकी और सारी चीज़ें हैं जिससे अपन थोड़ा सा एडवांस लर्निंग पे जाते हैं, थीम वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, UPSC के ओरिएंटेशन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं रेदर देन व्हाट वी हैव बीन टॉट इन द क्लास। सो दिस इज तो फिर आप बेसिक स्टडी से एडवांस स्टडी में आ गए, और फिर एडवांस स्टडी से लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बेसिकली मेस्लो की हायरार्की का जो टॉप मोस्ट स्टेट होता है, बेसिकली यू लर्न, यू सॉर्ट ऑफ ओवरलैप, कि मतलब अगर ये UPSC है तो आप कॉमनैलिटीज ढूंढने लगते हो, दिस इज यू मान लो, ओके। सो आप ये वाला चीज़ पे काम करने लगते हो रेदर देन व्हाट इज बीइंग टॉट देयर, है ना। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, फिर यू सॉर्ट ऑफ रियलाइज कि दीज आर माई स्ट्रेंथ, दीज आर माई वीकनेस, एंड व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, आप उस चीज़ पे काम करने लगते हो, एज वेल एज वीकनेसेस को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने लगते हो और उसको भी स्ट्रेंथ में करने का कोशिश करते हो। सो ओवर मेन फोकस विल बी इन दिस फेज ओनली, कि वी विल help you realize the pattern of mistake that you may have been committing. Seriously, like I feel like lot of us sort of are not aware of the mistakes that we are doing. So this is what we are here. We want to be torch bearer, so that like I personally feel like a lot of time of the aspirant is being wasted in this journey, and बहुत बार तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि what the mistakes that they are doing, और काश कुछ छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस भी अगर एस्पिरेंट्स कर लेते हैं तो they could have entirely different results. So that is what we are here for. So our vision is to make you smart. Okay, हम smart बनाएंगे। यहाँ पे the S stand for scientific study. Okay, M stands for मैथमेटिकल ड्रिवन, सो मैथ्स ड्रिवन या डेटा ड्रिवन। सो ये सारी चीज़ें पे हम आपको हेल्प करेंगे। आई पर्सनली फील लाइक कि मतलब जैसे अगर अपन बीमार होते हैं तो देयर इज अ डायग्नोसिस टेस्ट, राइट। अगर UPSC में फेल होता हूँ, देयर इज़ नो डायग्नोसिस टेस्ट, राइट। किसी को भी जाते हैं तो एट बेस्ट जो डायग्नोसिस होता है वो देखेगा कि तेरा पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग है, दैट इज सो लाइक बहुत ही वेग है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो रेदर लाइक ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जिससे मान लो अगर मैंने 2 या 3 बार प्रीलिम्स दिया नहीं हुआ तो ऐसा कोई भी डेटाबेस हो जिसमें जाके मैं वो जितने भी मेरे 300 क्वेश्चंस 3 अटेम्प्ट्स में मैंने अटेम्प्ट किए थे वो मैं जाके फिल इन कर दूं और वो मेरे को बता दे, सीरियसली बता दे कि ये मिस्टेक्स कर रहे हो। सिंपल जैसे अगर मैं कोई एक इंडिविजुअल हूँ, सो लाइक मेरा इंटरनल सेल्फ से क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं वो सारा अगर कोई मेरे को बता दे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं, I was sort of learned lot of mistake of vague reading. Vague reading का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया, इट इज टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न कोस्ट, बट मैं रेदर देन अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत व्हाट आई वाज डूइंग वाज आई वाज मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स ड्यू टू वेगनेस ऑफ रीडिंग। तो मैं कैसे वेग रीडिंग कर रहा था मैं बताता हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन आया जिसमें लिखा था समथिंग अबाउट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब मैं दिमाग में तो ईस्टर्न कोस्ट लिया, पर दिमाग में मैं सोच वेस्टर्न कोस्ट रहा हूँ, या फिर गलती में हो ऐसा गया कि पढ़ा ईस्टर्न कोस्ट बस लिंक उसको वेस्टर्न कोस्ट से कर लिया। इस चीज़ को मैंने सही कैसे किया, वाज कि अगर मैं ईस्टर्न कोस्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं तुरंत ऐसा इंडिया का रफ मैप बनाऊंगा, नीड नॉट टू ड्रॉ ए मैप, वी बनाऊंगा, और आई विल सॉर्ट ऑफ फोकस ऑन these kind of things जो मैं प्लॉट करता हूँ। एंड दिस इज द one of the major changes that I did during 2024 attempt, and I attempted all the 100 questions. Through this channel I will make you aware about all those mistakes, not only me but all the aspirants, the pattern of mistake that they have been making again and again, और उस mistakes को rectify कैसे करेंगे, that is what we are here for. So I will make sure that you study scientifically. एंड जो आप पढ़ाई करते हो चाहे प्रीलिम्स का हो मेंस का हो, आई पर्सनली फील लाइक वी डू लॉट ऑफ इमोशनल रीडिंग। मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो और जो पसंद नहीं है उसको नज़रअंदाज कर देते हो। सो दैट इज़ रियली इरेशनल वे ऑफ स्टडिंग। सो इमोशनल स्टडी करते हैं अपन ओबियसली।
सो व्हाट वी विल हेल्प यू टू स्टडी स्मार्टर, मैथ्स का डेटा का यूज करो एंड बी रियली ऑब्जेक्टिव अबाउट इट. Okay, see, A stands for art. In this pillar we will help you to go deeper down in within yourself and try to find out what are the strength that you are having and what are the weakness that maybe there are there. So what is अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं वो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पे सब कुछ चल रहा है. एंड बट आई बिलीव कि हर कोई इंडिविजुअल बहुत यूनिक होता है और उस यूनिकनेस को ही आप कैसे यूपीएससी. सो इन द आर्ट फॉर्म व्हाट लाइक इन द आर्ट आई वुड से कि जो आपका यूनिक फैक्टर्स है, जो यूनिक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंस हियर. सो यहाँ पे ये बहुत ही रिवार्डिंग होता है. एंड व्हाट द कोचिंग इंडस्ट्री एंड लॉट ऑफ मेंटर आर डूइंग आर what they are doing is they are killing the inner self, the true self, the authenticity of the various aspirants. So will also help you to like sort of realize your art. And R stands for retention. ये सबसे ज़्यादा इशू मुझे लगता है कि बार बार प्रीलिम्स देते देते ऐसा हो जाता है कि लक्ष्मीकांत यार 20 बार 30 बार 40 बार 50 बार पढ़ लेते हैं. एंड आई फेल्ट लाइक कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ मैजिक ट्रिक होता कि मैं एक बार में पढ़ के ही याद कर लेता या 5 बार में पढ़ के याद कर लेता, बार बार नहीं पढ़ना लगता, तो दिस वुड हैव बीन लाइक बहुत अच्छा वरदान होता है ये. सो इस चीज़ पे सीरियसली मैंने बहुत काम किया है. फॉर लास्ट 2 years वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस एंड थैंकफुली वी हैव डेवलप्ड वेरियस मेथड्स थ्रू विच बहुत सारे टॉपिक्स का नाउ लाइक इट मे हैव लाइक 1 साल हो गया है मेरे को बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए, बट लाइक इट्स एज फ्रेश एज आई हैव रेड यस्टरडे. ये वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे शेयर करेंगे. एंड लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, सब जो मेरा सबसे फेवरेट है दैट इज़ टेक. तो अभी अगर आप एआई के हेल्प नहीं ले रहे हो, वैसे ही स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो, तो बहुत ही पास्ट में जी रहे हो. सो इन दिस टेक वी विल मेक यू हेल्प, वी विल हेल्प यू टू यूटिलाइज एआई. तो आपको एआई कैसे यूटिलाइज करना है फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जाम हम आपको सिखाएंगे. एआई के अलावा गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन को बहुत ही आसान बनाने में आपका हेल्प करेंगे. सो विल सीरियसली रिड्यूस योर वर्कलोड बाय एटलीस्ट 20-30%. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि नज़र बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, और कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस दिशा को बदलना है, किनारे खुद बदल जाएंगे. सो दैट इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर. And I would say let's evolve together, let's be smarter, let's be sharper, let's be successful. Thank you so much for watching this video. Please subscribe us for more content, and thank you.